Okay, so today we will discuss about the continuity of function of two variable at the point a comma b. Okay, so this is a continuity of a function f x comma y at the point a comma b. Okay, so we have at the point a comma b. So basically जैसे कि हम अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे लिमिट होती थी ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम द फंक्शन की वैल्यू शुड बी एग्जिस्ट इन दिस पॉइंट ए कॉमा बी, तो दिस कंडीशन शुड बी होल्ड। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट इन डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod of fx comma y minus f of a comma y, it means फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a comma b should be less than epsilon whenever mod of x minus a is less or equal to delta and mod of y minus b is less or equal to delta. Okay, so this is the condition for the continuity of a function at the point a. It means that limit should be exist, limit x tending to x comma y tending to a comma b of fx comma y should be exist and should be equal to the value of the function at that point, and value of the function should be exist that point and equal. Okay, so there are two remarks. क्लियर विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जो हम लिख रहे हैं वो रीडेबल है? यस सर, क्लियर है एकदम। A function fx comma y is said to be continuous with respect to x। अगर हम किसी x, केवल एक पॉइंट x के रिस्पेक्ट में हम उसे कंटिन्यूअस कह रहे हैं, with respect to x at the point a comma b, if the function, if you are putting the value of y, y equals to b पुट करके जो हमारे पास फंक्शन बचता है, if the function एफ एक्स कामा बी, हमने y की जगह b पुट कर दिया, तो अब ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया इन x, है ना। एंड इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x, देन इट विल बी से इट इज कॉन्टिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस पॉइंट a कामा b। If the function of x is continuous, the continuous function of x at the point of x is equals to a। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम रिमार्क टू की बात करें, तो अगर हम उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, अगर हम x बराबर a पुट कर दें, ओके, और उसके बाद वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है एट y इक्वल्स टू b। तो अ फंक्शन यू कैन जस्ट हैव अ फंक्शन f x comma y is said to be
continuous with respect to y at the point a comma b. Okay, if the function f a comma y of y is a continuous function of y at the point of y is equals to b. ओके, तो एक कॉल आ रहा है, प्लीज वेट 1 मिनट. ओके, तो अंडरस्टूड कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो. ठीक है. और दूसरा, अगर हम किसी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, इसका मतलब जो फंक्शन बन रहा है व्हेन यू आर पुटिंग y इक्वल्स टू b. ठीक है, तो हमारा फंक्शन एक्स का बचेगा और वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. ओके, अब है, इट्स ओके. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं. ओके, सो इधर दिस इज इन दिस साइड. ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, फॉर्म कॉन्टिन्यूटी. सो द function fxy y is said to be, said to be uniformly continuous in domain D if for every epsilon positive there exists delta that is not depending on the point, है ना, which is not depends only epsilon, not depending any of the point. Okay, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, दैट इज बिलोंग्स टू द पॉइंट, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं. बट जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो जो हमारे पास डेल्टा मिलेगा, दैट विल बी ओनली डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, नॉट डिपेंडिंग एनी ऑफ द पॉइंट. और सारे पॉइंट्स के लिए वो हमारे पास जो हम एप्सिलॉन लेंगे उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा मिलेगा और सेम फिक्स डेल्टा मिलेगा. Okay, so there exists a delta, and you can write here, which depends only on epsilon and not any point. Domain such that for every point a comma b in the domain
domain f x comma y minus f of a comma b is less than epsilon. Okay, so it means the delta is depending only on epsilon. तो ये definition आपको याद रखनी है. What is the uniform continuity? So we already discussed some theorems on the continuity of function. Boundedness theorem है ना, and intermediate value theorem. These all exist here है ना. And if function is not continuous, in that case we will say that function is discontinuous at that point. Okay. सो इसके ऊपर सबसे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिमिट को निकालना है ना, क्योंकि लिमिट हमारे पास एक बार कैलकुलेट कर ली गई तो वी कैन एबल टू से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं. ठीक है, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं. ओके, तो आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना? Yes, sir. Okay, so let's do one question. I'm writing the question. Examine the continuity of the following function at the origin. Okay, so the function is defined like this. X comma y is just equal to 2xy divided by x square plus y square. And when x comma y is not equal to 0, then this is the function. And the value of the function at this point is just equal to 0. Okay, so let us do कि कैसा सोल्यूशन हम लिखेंगे. तो सबसे पहला टास्क है हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले तो लिमिट को कैलकुलेट करना है. तो सो लेट पुट y equals to mx in fx comma y. ओके, तो इसमें जब पुट करेंगे, बिकॉज व्हेन यूर x comma y टेंडिंग टू 0 बाई दिस कर्व है ना, एक लाइन है और वो अप्रोच कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वी विल गेट दिस इज योर x एंड mx विल बी व्हाट, दिस इज 2 times x into mx divided by x square plus m square into x square. हमने y की जगह पे mx पुट कर दिया. तो यू विल गेट इज 2x square m divided by x square कॉमन ले लो तो 1 plus m square. So you can cancel it out. You will get this is 2m. You cannot cancel here directly till you don't know about the. You just find the limit now. Limit x tending to 0. So this will be becomes 2x square m divided by x square, and this is 1 plus m square. So now you can cancel it out. So you will get this is 2m upon 1 plus m square. तो अगर हमने कहा we have the curve y equals to m1x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर. ये लिमिट हो गई. और अगर हमने कहा y इक्वल्स टू m2x, वी आर चेंजिंग द स्लोप, तो दिस विल बी 2m2 अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो पाथ पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन पाथ. तो अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते. तो दिस इंप्लाइज एट दिस पॉइंट 0, 0 गिवन फंक्शन
इज नॉट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या यू कैन से Yes, sir. डिसकंटिन्यूअस। Okay, so you just try these examples. Let us do some problem from exercises. So we have this one. Uh, in a question number, so this all the question is at approaching 0, comma 0. Okay, so let's do a question from the time now. Okay, so this is question number from your exercise. From exercise. क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ का है। व्हाट इज दिस? स्पार्कल पेन। Okay. So it is function is given f x comma y is just equal to x square y divided by, this is x power 6 plus y cube, and this is your x comma y is not equals to 0 comma 0, and this is equals to 0 at x comma 0 comma 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और द फंक्शन इज गिवन लाइक दिस। तो वी हैव टू चेक जिम द फॉलोइंग फंक्शन आर फॉर कॉन्टिन्यूटी एट द ओरिजिन। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो लेट्स डू द प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द लिमिट। तो कैन वी फाइंड द लिमिट हियर? इफ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली, so by the path, okay, so what you get from here, uh, because if we are putting y equals to mx, so it will becomes, you can just cancel out, this is 1 upon, and you will get some, I think, uh, some m here. Okay, so if I'm just putting here, okay, so given function, वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स कमा वाई is just equal to x square y divided by x की पावर 6 प्लस वाई क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, लेट अस पुट, बिकॉज y इक्वल्स टू एम एक्स इज अ कर्व। तो अगर हम, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम पाथ डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है, इससे खाली हम ये चीज दिखा रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये चीज श्योरिटी नहीं दे पाएंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब हम ये पाथ ले रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पाथ है। हो सकता है किसी दूसरे पाथ के लिए लिमिट हमारी डिफरेंट आती हो, ठीक है। तो जब हम y को एम एक्स ले रहे हैं, तो ये हमारे पास वो सारे लाइंस का कलेक्शन है जो इस पॉइंट से होकर 0, 0 से होकर पास हो रहे हैं। मतलब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके थ्रू हम जा रहे हैं। बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, उन कर्व के थ्रू हम 0 की तरफ अप्रोच करें, ठीक है। तो इससे हम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक कर सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, उसके लिए फिर हम रिपीटेड लिमिट की हम बात करेंगे, है ना। तो लेट अस सी की y इक्वल्स टू एम एक्स क्या आता है। दिस इज y इक्वल्स टू एम एक्स, जब अगर हम पुट करें यहाँ पर, तो यू कैन सी क्लियरली दिस इज योर x
and this is your mx. So this is your x square into mx डिवाइडेड बाय, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स कर्व यूज कर ले तो ये हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं वही यूज हो. यू कैन चेंज द कर्व, यू कैन चेंज द योर लिमिट, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे वो कर्व ले, बस प्रोवाइडेड कि कर्व शुड बी पास थ्रू द ओरिजिन, या जो पॉइंट पे हमें लिमिट कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से होकर वो कर्व पास होना चाहिए. जैसे हम ए कमा बी की बात कर रहे हैं तो ए कमा बी द्वारा वो कर्व सेटिस्फाइड हो, है ना. मान लो हम किसी दूसरे रास्ते जा रहे हैं वहां से पास ही नहीं हो रहे तो हम अप्रोच थोड़ा ना कर रहे हैं उस पॉइंट को. ओके, so this will be x power 6 and plus this is your m cube and x cube. So from here you have x cube into m divided by x cube, and this is x cube plus m cube, and you can cancel it out, so you will get this is m upon x cube plus ka m cube. Clear? If you are going to calculate the limit when x tending to 0, if x is tending to 0, ठीक है, तो what you got from here? You can easily see कि this is limit x tending to 0. This is f of x comma y, or you can say इसको आप mx करिए कि हमने पुट कर दिया ना, तो you can just limit x tending to 0 and this will be your m upon x cube plus का m cube. Okay, now you can put x equals to 0, so you will get m upon m cube and this will be 1 upon m square. So now the limit is depending on the path, because m पे डिपेंड कर रहा है तो m चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी. तो since limit is depending on path, so it does not exist. It does not exist. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, 0. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स. या इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. टाइम कितना हो गया? 27. नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव्स को बता देते हैं. और कौन कौन है क्लास में? अभिषेक सर है, अब है नहीं, बाकी सब है. हम जाए. ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रही चीजें? यस सर. नोट कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं सारी चीजें? यस सर, कर रहे. ओके ओके. सो नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसको हम, बाकी इसके जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ट्राई करिएगा, और जो नहीं आएंगी उनको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली हम एक वेरिएबल को फिक्स रखते हुए दूसरे वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो फंक्शन चेंज होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, तो हम बेसिकली अगर हमारे पास, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस फंक्शन जेड और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो अगर हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन को हम जेड के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हम डेल एफ ऑफ डेल एक्स, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, या फिर करली एफ ऑफ करली एक्स हम बोलते हैं. तो दिस डेल एफ ऑफ डेल एक्स इज
written like this is limit h tending to 0. तो नाउ वी आर फिक्सिंग y हेयर, y को हम फिक्स रख रहे हैं, चेंज किस में कर रहे हैं, स्लाइटली x के अंदर, तो x में स्लाइटली चेंज होगा तो फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, तो दिस इज f ऑफ x प्लस h, ओके, एंड y इज फिक्सेस माइनस ऑफ एफ एक्स कामा y divided by h. So this is the partial derivative with respect to x. Similarly, partial derivative with respect to y will be what? This is again limit h tending to 0. You can अब हमारे पास x फिक्स है, y को हम चेंज कर रहे हैं, तो here we can change the variable. This is x, this is y plus k. k वेरिएबल ले लो या h ले लो, वट एवर यू कैन टेक. दिस इज योर x कामा y डिवाइडेड बाई k. ओके, सो जब हमें जनरली पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे हमने मान लो हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स कामा वाई, ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज एक्चुअली जेड. अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं करली एफ ऑफ करली एक्स, तो हम जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, जैसे कांस्टेंट नंबर ट्रीट होता है वैसे वाई ट्रीट होगा, ठीक है. तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सिंपली 2x, और वाई इसमें मल्टीप्लाई है तो वाई मल्टीप्लाई में रहेगा. फर्दर जो सेकेंड टर्म है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज जीरो. तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 2xy. ओके, इट इज सिंपल. यस सर. ओके, नेक्स्ट है, अगर हम इसको यस सर. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, तो नाउ वी विल टेक एक्स एज अ कांस्टेंट, हम एक्स को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई का जो टर्म है, तो वाई का हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रिमेन्स हियर, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा तुम्हारे पास 2y. तो दिस इज द डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो इसी तरीके से कितने भी फंक्शन क्यों ना हो, एक्स वाई जेड, कितने भी वेरिएबल हमारे पास क्यों ना हो, अगर हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अदर सारे कांस्टेंट को हम जो है कांस्टेंट रखेंगे, जेड इन करली एफ ऑफ करली, क्लियर. तो दीज आर लाइक दैट. ओके, अब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिंपली किसी पॉइंट पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव दिस इन द प्लेस ऑफ एक्स. अगर हम कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा, अगर हम कह रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट पॉइंट ए कमा बी, ओके, तो यू कैन इजिली इसको नोटेट ऐसे भी किया जाता है, दिस इज एफ एक्स एक्स कमा वाई, ऐसे नोटेशन भी करते हैं, मतलब सफिक्स में एक्स जोड़ देते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसमें हम वाई ऐसे कर देते हैं, दिस इज एक्स कमा वाई. तो अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का एट द पॉइंट ए कमा बी, तो यू कैन से दिस इज करली एफ ऑफ करली एक्स एट ए कमा बी. यू कैन नाउ, अब एक्स और वाई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ए कामा बी, तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज f ऑफ a प्लस h, है ना, एंड b माइनस का, दिस इज a कामा b एंड डिवाइडेड बाई h. so this is similarly you can easily say about this curly f of curly y when at the point a comma b. So you can have this is limit k tending to 0, and this is f of a and this is b plus k, and minus का f of a comma b. Simply ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, और दिस इज पर्टिकुलर फार्मूला एट द एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे उस वैल्यू, तो आप या तो डायरेक्टली निकाल लीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट में वैल्यू रख दीजिए, है ना, इसमें पुट कर दीजिए, पुट x comma y is equals to a comma b. Okay, then you will get the partial derivative of the function at that particular point. Okay, यस सर. क्लियर है. so
let's okay, one thing is here, we should know कि फंक्शन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंटिन्यूअस हो। जैसे एक हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हम पढ़ते चले आए हैं कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस, है ना, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलरेडी इज अ कॉन्टिन्यूअस, दैट विल बी इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, बट यहाँ पर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है वो अदर एस्पेक्ट में आती है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल in that function is not continuous but partial derivatives still exist. Okay, तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। let us do a problem. इक्वेशन है so that the function that is phi x comma y just equal to x cube plus y cube divided by x minus y when x is not equals to y, and this is phi of x comma y is just equal to 0 when x is equals to 1. So that the function is defined like this, is not continuous, at the origin, although phi x 0 comma 0 and phi y 0 comma 0 both exist, है ना, इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं बट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। लेट अस सी, तो कंटिन्यूटी के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? हमें कंटिन्यूटी के लिए जो है लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना होता है, दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो लेट अस सी। सो गिवन फंक्शन इज व्हाट? गिवन phi x comma y, x cube plus y cube डिवाइडेड बाय x माइनस। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम y टू एम एक्स पुट करते हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी या जीरो आ जाएगा। बट हम एक एनदर दूसरा हम कोई तरीका अपना सकते हैं। अगर हमको एक पाथ ढूंढना है, अगर नॉन एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ये पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास फी एक्स एंड दिस इज एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, वाई की जगह पुट करा, क्या मिलेगा? तो इट विल बी एक्स क्यूब और प्लस दिस विल बी एक्स माइनस एम एक्स क्यूब होल क्यूब एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स ऑफ सॉरी, दिस इज एक्स एंड माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम एक्स क्यूब, ये हमारे पास। अब इसको पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास पाथ डिपेंडेंट आएगी लिमिट। ओके, तो लेट अस सी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको ए माइनस बी का होल क्यूब से ओपन कर देते हैं तो दिस विल बी एक्स क्यूब एंड दिस विल बी माइनस एम क्यूब एक्स की पावर 9 एंड दिस इज
it will be minus 3 times, okay, 3 this one, okay. So this is 3 times x, okay, 3 times x into mx क्यूब, ओके, ब्रैकेट में होता था ना x माइनस एम एक्स क्यूब, ये तो होता था फार्मूला, एंड डिवाइडेड बाई Yes, sir. ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी है एम एक्स क्यूब, ओके. So what you got from here? You just have 2x cube is here and minus m cube x power 9 is here. And here you will have uh, क्या मिलेगा तुमको. इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो दिस विल बी 3 3m x की पावर 5, बिकॉज x पावर 1 and 3 is 4 and 5, and minus minus plus, this is a 3 3 3 is 617 m x power 7, and divided by mx cube, okay. So you can take x cube outside, so if it remains, this is 2 m cube x power 6 and minus 3 m x power 2, and plus this is 3 m x power 4, and divided by mx cube, okay. So now अगर हम अब लिमिट निकालने जाते हैं, now the limit x tending to 0 now, okay. This is phi of x and this is x minus mx cube is just equal to what? This is limit x tending to 0. This is your x cube and this is 2 minus m cube x power 6 minus 3 m x square plus this is your 3 m x power 4 divided by m x cube, okay. तो यू कैन कैंसिल इट आउट, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो और सारे